Hello everyone, welcome back to Y Academy. So as we know that we have started question answers on the topic acid, bases and salt. Today is the fifth lecture of this topic. Now let's continue our question answers. So today's first question is which one of the following, which one of the given is a mineral acid? आपको पूछ रहे हैं mineral acid कौन सा है? Which one of the following is a mineral acid? Options are option number one lactic acid. Option number two, formic acid. Option number three, tartaric acid. And option number D, hydrochloric acid, HCl. Now, I have taught you the acids are of two types. One is organic acid and other one is mineral acid. Right? The organic acids are the main constituent is the carbon and they occurs naturally. We know that the mineral acid are also called as laboratory acids because they are prepared in the laboratory and they are prepared by the minerals from the earth crust and they are prepared by the humans mainly. So these are the man-made acids. Okay. Mineral acids are also called as man-made acids. Now it is asking which one of the following is a mineral acid which is obtained from the minerals. So the option is now you can see lactic acid is present in the milk, which is a natural acid. Formic acid present in the ant sting, which is also a natural acid. Tartaric acid is present in the tamarind, which is also natural acid. The HCl is prepared by the mineral, so it is the mineral acid. So the first answer of the mineral acid is will be the hydrochloric acid. Okay, we will go for the second question. Which one of the given is an organic acid? अभी second question पे पूछ रहा है which one of the given is organic acid? Option number one, citric acid. Citric acid. Option number two, HCl. Option number C, lactic acid. And option number D is both A and C. So the correct answer will be obviously D because citric acid present in the lemon or orange. Lactic acid as I told you present in the milk or curd. बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए. ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको फटाक से रिमाइंड होना चाहिए. HCl तो मिनरल है, अभी जस्ट देखा, सो ऑप्शन विल बी डी, both A and C. Citric acid and lactic acid are both are the organic acids. Next, question number three. Which one of the given is incorrect? Which one of the given is incorrect? गलत कौन सा आपको बताना है? Incorrect. Option number one. Acid turns acids turns blue litmus paper to red. Blue litmus paper to red litmus paper. देखो करेक्ट है या रॉन्ग है. ऑप्शन नंबर टू, aqueous solution of acids conduct electricity. Aqueous solution of acids conduct electricity. Okay, now option number C, acid acids reacts with certain metals to form hydrogen gas. Certain metals to form hydrogen gas. And option number D is none of these. देखो इस तरह से आपको चार ऑप्शन दिए और पूछा है आपको ये कि कौन सा वाला ऑप्शन है इसमें से जो इनकरेक्ट है, जो गलत है. फर्स्ट अगर ऑप्शन को अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो एसिड जो है, लिटमस पेपर आपको पता है, लिटमस पेपर इज अ इंडिकेटर, राइट. आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है पूरी. इंडिकेटर है लिटमस पेपर. तो जब इंडिकेटर है तो लिटमस पेपर के अंदर क्या होगा सबसे पहले? अगर लिटमस पेपर अगर अपन ब्लू वाला लिटमस पेपर अगर
एसिड में डीप करेंगे तो क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर विल कन्वर्ट इनटू रेड। सो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है ऑप्शन, राइट। ब्लू वाला रेड शो करेगा। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। आपको इनकरेक्ट पूछा है, जो गलत है ना वो बताना है आपको। इनकरेक्ट क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाला देखो, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं HCl का एक्वेस सॉल्यूशन बनाऊंगा वाटर में तो क्या मिलेगा मुझे? H प्लस Cl माइनस, मतलब आयंस मिलेंगे, या फिर H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस मिलेगा, मतलब कैटायंस और एनायंस मिल रहे हैं मुझे। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? कैटायंस और एनायन ही तो चाहिए। तो ये भी करेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। थर्ड में देखो क्या बोल रहा है, एसिड रिएक्ट्स विथ सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। चलो चेक करते हैं अपन, कोई भी एक मेटल लेते हैं पहले। कौन सा लेंगे? सपोज मैग्नीशियम लिया मैंने। when this magnesium will reacts with two molecules of hydrochloric acid, क्या बनाएगा बताओ, चलो जल्दी से। देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमेशा डाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो HCl है इसमें क्या क्या निकलेगा? H प्लस Cl माइनस, H प्लस के दो आयन, Cl माइनस के दो आयन। अब पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा? नेगेटिव वाले के पास। तो क्या बनाएगा? MgCl2, और बाहर निकलेगा हाइड्रोजन गैस। तो थर्ड सेंटेंस भी करेक्ट आ रहा है आपका। तो बचा क्या सिर्फ अभी? नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? नन ऑफ दिस। इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है गलत नहीं है, ठीक है। सबके सब करेक्ट है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे हर एक का थोड़ा सा सोच समझ के आपको सॉल्व करना है, ताकि कुछ गलती ना हो एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। Which one of the given acid is used in the treatment of bone marrow and scurvy disease? Which acid is used in the treatment of which acid is used in the treatment of bone marrow and scurvy disease? Bone marrow and scurvy disease. Option number 1, acetic acid. एसिटिक एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस एसिड? आई होप आपको याद हुआ होगा, CH3COOH, ठीक है, याद रखना। सेकंड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस एसिड? HCl। थर्ड वन इज एस्कॉर्बिक एसिड। कल बताया था मैंने, ये भी एक एस्कॉर्बिक एसिड का कहाँ पे होता है, कहाँ से सोर्स है? विटामिन सी, ये सोर्स है। ऑप्शन नंबर डी इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। पूछ रहा है इसमें से कौन सा एसिड है जो कि यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो, एक डिसीज है, और स्कर्वी एक डिसीज है, ठीक है। इसमें से उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा वाला एसिड यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी की कमतरता, मतलब विटामिन सी अगर बॉडी में से कम हो गया तो उसको बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। तो उस वक्त आपको एस्कॉर्बिक एसिड की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो डिसीज से जो है आप आउटकम हो जाए, वो डिसीज आपका चला जाए, इसलिए, ठीक है। सो द आंसर विल बी एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल? एसिड प्रेजेंट इन एप्पल में कौन सा एसिड होता है? चलो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ऑक्सैलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी एसिटिक एसिड। एंड ऑप्शन नंबर डी फॉर्मिक एसिड। चलो बताओ। देखो ऑक्सैलिक एसिड इसके पहले भी देखा है अपन ने, एसिटिक एसिड भी देखा है विनेगर में, फॉर्मिक एसिड देखा है एंड्स बाइट में। तो ये जो मैलिक एसिड है ना, ये होता है एप्पल के अंदर, याद रखना। मैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल। क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द गिवन इज अ हाइड्रा एसिड? विच one of the given is
hydrazine. Hydrazine. Option is H3PO4. Second option is H2SO4. Third option is HCN. Fourth option is HNO3. पूछ रहा है कौन सा हाइड्रा एसिड है, मतलब यहाँ से H प्लस वाला जो है, देखो H3PO4 में 3 है, H2SO4 में 2 है, H प्लस SO4 माइनस माइनस, H प्लस NO3 माइनस होता है, यहाँ पे क्या निकलेगा H प्लस CN माइनस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा HCN। हाइड्रा एसिड जो है उस कैटेगरी में HCN आता है, सो करेक्ट आंसर विल बी HCN। Going to the next question. Next question number 7. Most of the oxides of metal when reacts with acid form. Question number 7. Most of the oxides of metal, most of the oxides of metal when reacts with acid, when reacts with acid, they form. क्या बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए, बेस, ऑप्शन नंबर 2 acid, option number C salt, and option number D either one or two, either A or B। देखो, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट्स विथ एसिड, तो क्या बनाते हैं पूछ रहा है। चलो एग्जांपल लेके देखते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल में लेता हूँ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जब रिएक्ट होगा HCl के साथ, ठीक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लेता हूँ मैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाएगा, Mg प्लस प्लस O माइनस माइनस, ये क्या बनाएगा H प्लस Cl माइनस, दो दो मॉलिक्यूल। Mg डायपॉजिटिव किसके साथ जाएगा, Cl माइनस के साथ, तो क्या बनाएगा MgCl2। अब ये जो बन गया ये क्या है, एसिड है, बेस है, साल्ट है, क्या है, H प्लस है क्या, नहीं है, OH माइनस है क्या, नहीं है, मतलब एसिड भी कट गया, बेस भी कट गया, क्या बचा, इट इज अ साल्ट, MgCl2। ठीक है, सिंपल है। कोई भी मेटल का ऑक्साइड लो, रिएक्ट करो कोई भी एक एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे साल्ट मिलेगा, सिंपल। तो आंसर विल बी सी, साल्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, सोडियम ऑक्साइड ले लो, पोटेशियम ऑक्साइड, कोई भी, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, कोई भी मेटल का एक साल्ट बना लेने का और उस पर रिएक्शन कर लेने का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जनरली when certain metal reacts with an acid they release dash gas। when metal reacts with acid, जस्ट इसके पहले एक एग्जांपल देखा है अपन ने, दे रिलीज विच गैस। ऑप्शन A B C D में देखो क्या क्या दिया है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, एर्गॉन गैस। क्या रिलीज करता है व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। चलो सोडियम लेता हूँ, सोडियम रिएक्ट्स विथ एसिड, क्या बनाएगा, सोडियम के अपन 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, इसके भी 2 लेते हैं। सोडियम तो हमेशा Na प्लस के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे H प्लस Cl माइनस के 2 2 लेते हैं, क्या बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, और बाहर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी मेटल ले लो आप, उसकी रिएक्शन करना एसिड के साथ, तो बाहर आपको क्या निकला हुआ दिखेगा, हाइड्रोजन गैस ही दिखेगा। इसलिए डायरेक्ट इसको याद रखना, व्हेन एनी मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म, क्या बनेगा, व्हेन, विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पूरा नाम लिख देता हूं मैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रीवियस एक वीडियो में भी ये ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम दिया था, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका एक और नाम है, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ये क्या बोलते हैं अपन, बेकिंग सोडा।
क्या है फॉर्मूला बेकिंग सोडा का? NaHCO3। चलो ऑप्शन दिए इसने, एक तो दिया है NaCl, दूसरा दिया है कहाँ गया CO2, तीसरा दिया है वाटर, और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। शायद सेम क्वेश्चन आया था इसके पहले भी एक बार। चलो फिर भी और एक बार सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है NaHCO3, रिएक्ट होगा HCl के साथ तो क्या बनाएगा? देखो, सिंपली जब भी बाइकार्बोनेट रिएक्ट होगा एसिड के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसमें ये तीनों भी चीजें बनाता है, जैसे कि NaCl भी, CO2 भी, वाटर भी। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे क्या रिएक्शन होने वाली है, जब भी कोई सोडा एसिड जो भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं, अगर यहाँ पे Na2CO3 भी लूंगा ना और HCl के साथ रिएक्ट करूंगा तो भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो मिलने ही वाला है मुझे, क्योंकि कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होंगे तो ये तो बनेंगे ही। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट NaCl बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही NaCl बनेगा सोडियम क्लोराइड वाला कार्बोनेट के साथ में भी। तो इस तरह से ये रिएक्शन है, पता होने चाहिए। तो इसमें तीनों भी प्रोडक्ट करेक्ट आएंगे, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होगी तो ऐसे ही साल्ट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड के दो टाइप बताए थे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। उसी तरह बेस के भी हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑप्शन फर्स्ट, कंप्लीटली गेट आयोनाइज्ड इन वाटर। देखो करेक्ट है क्या? कंप्लीटली गेट आयोनाइज्ड इन वाटर। ऑप्शन नंबर टू, partially get ionized in water, partially get ionized in water. Third option, do not get ionized in water, do not get ionized in water. And fourth option is all of these. स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, कंप्लीट आयन्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि HCl हो गया। HCl अगर H प्लस और Cl माइनस के आयन फॉर्म करेगा ना तो वो कंप्लीटली फॉर्म करता है। ठीक है, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या आएगा? कंप्लीटली गेट आयोनाइज्ड इन वाटर। वही अगर वीक एसिड लेते तो दे विल बी पार्शियली गेट आयोनाइज्ड इन वाटर। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पॉइंट आएगा फर्स्ट वाला, कंप्लीटली गेट आयोनाइज इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द गिवन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, पहचानना है आपको। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH टेकन ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एंड लास्ट वन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बताओ कौन सा वाला आएगा स्ट्रॉन्ग बेस? करेक्ट आंसर विल बी डी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये तीनों भी जो है वीक बेसेस हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा आएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द गिवन इज यूज्ड एज एन एंटासिड? विच वन ऑफ द गिवन इज यूज्ड एज एंटासिड? यूज कौन से वाले का है, कौन सा बेस होता है या कौन सा क्या होता है? ठीक है, एंट, एंट मतलब एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ऑफ एसिड मतलब एसिड का अपोजिट रिएक्शन करने वाला, दैट इज, इसलिए उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट ऑफ एसिड। इसलिए कंबाइनली क्या बोलते हैं? एंटासिड, एसिड का अपोजिट वाला। ठीक है, ये जनरली जब भी अपने को एसिडिटी वगैरह होती है ना, अगर खाने का जो टाइम है वो आगे पीछे हो गया, तब अपना स्टमक जो है अगर उसको तो पता है कि बराबर ये टाइमिंग पे यहाँ पे फूड आता है, उसको ब्रेक डाउन करना होता है, तो स्टमक क्या रिलीज करता है? एसिड। कौन सा वाला? HCl वाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट अगर उस वक्त आपने कभी, आपका खाने का टाइम स्किप हो गया बट स्टमक ने तो एसिड सिक्रेट कर दिया, तो आपको क्या होती है? एसिडिटी होती है, राइट। छाती में जो है ना, स्टमक स्टमक के अंदर एसिडिटी होती है। उस वक्त क्या करते हैं अपन? एंटासिड नाम की जो मेडिसिन होती है वो लेते हैं अपन। ठीक है, उससे क्या होता है? एंटासिड के अंदर होते हैं बेस, जो अपने स्टमक में एसिडिटी बढ़ गई है वो न्यूट्रलाइज होती है बेस के थ्रू, एंड इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड वर्सेस बेस होता है वहाँ पे।
और अपनी एसिडिटी कम होती है। तो ये क्या पूछ रहा है, कौन सा वाला नीचे यूज किया जाता है एज अ एंटासिड? फर्स्ट ऑप्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेकेंड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, सब के सब यूज होते हैं एज अ एंटागोनिस्ट या फिर एंटासिड, एसिडिटी कम करने के लिए स्टमक की। ठीक है, सो द ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दिस। याद रखना, एंटागोनिस्ट एसिडिटी कम करने के लिए अपन ये मेडिसिन लेते हैं। आपके घर पे अगर येलो कलर की कोई मेडिसिन की बॉटल है, ठीक है, तो उसके ऊपर देखो लिखा होगा एंटासिड, मीठी स्वीट होती है दवा ये। ठीक है, उसके कंटेंट कभी देख लेना, तो आपको ये से नाम दिखेंगे, उसके अंदर बेसिस होंगे सब के सब। विच वन ऑफ द गिवन इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर की पीएच वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज 0, ऑप्शन नंबर 2 7, सी 8 एंड डी 1। देखो प्योर वाटर है तो उसका तो क्या होगा, न्यूट्रल ही होगा ना, राइट? जैसे कि रेन वाटर हो गया, उसके अंदर कोई साल्ट कोई बेस कोई मिक्स नहीं होता, इट इज अ न्यूट्रल, और न्यूट्रल का पीएच क्या होता है, 7। सो ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, which one of the given is true if a substance has pH value 4? ट्रू स्टेटमेंट बोलना है आपको, ट्रू स्टेटमेंट when a substance having pH value equal to 4। देखो फर्स्ट क्या दिया उन्होंने, द सब्सटेंस इज अ बेस, सब्सटेंस इज बेस, ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। सेकेंड, सब्सटेंस इज एन एसिड, substance is an acid। Option number 3, the substance is a neutral substance, neutral substance। And option number D is either A or B, either A or B। बताओ क्या होगा, पीएच 4 है, पीएच स्केल पता है अपने को, कहाँ से कहाँ होती है, 0 to 14, और सेंटर में क्या होता है, 7। अगर 0 to 7 के बीच में कोई आता है तो वो क्या होता है, एसिड। यहाँ पे कितना दिया है, 4, तो जनरली वो क्या होगा, सब्सटेंस इज अ एसिड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द गिवन इज अ ट्रू इफ अ सब्सटेंस हैज पीएच वैल्यू 7? सेम क्वेश्चन है, आंसर क्या आएगा, पीएच वैल्यू अगर 7 होगी तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 16, in which one of the given reaction a salt is reacting with a base? आपको चार रिएक्शन दिए उन्होंने, means a salt reacting with a base। ऑप्शन नंबर 1, NaOH plus HCl gives NaCl plus water। और ट्रू स्टेट कौन सी ट्रू रिएक्शन है बोलना है, ठीक है। सेकंड वाली, चारों के चारों रिएक्शन पॉसिबल है, ट्रू नहीं पूछा है, कौन से वाले रिएक्शन में साल्ट रिएक्ट हो रहा है बेस के साथ वो आपको जानना है। CuOH टेकन ट्वाइस प्लस H2SO4 gives CuSO4 plus 2 molecules of water। ऑप्शन नंबर सी, KOH plus HCl gives KCl plus water। And option number D, NH4OH plus AlSO4 taken thrice gives 2 molecules of aluminium hydroxide plus 3 molecules of ammonium sulfate।
आपको पता करना है कि कौन से वाले रिएक्शन में एक साल्ट रिएक्ट हो रहा है बेस के साथ। चलो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। NaOH ये क्या है? OH है मतलब बेस है, और HCl H प्लस है मतलब एसिड है। तो यहाँ पे तो बेस और एसिड रिएक्ट हो रहा है, ना कि कोई साल्ट है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। सेकेंड, CaOH आ गया मतलब बेस है, वापस से H प्लस आ गया मतलब एसिड है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये भी कट गया। KOH OH आ गया मतलब बेस है, H प्लस आ गया मतलब एसिड है, तो ये भी कट गया, दिस इज आल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो OH है मतलब बेस है। अब AlSO4 टेकन थ्राइस, ना ही H प्लस है ना ही OH माइनस है, तो ये क्या हो गया? साल्ट हो गया। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो NH4OH कैसे स्प्लिट होगा? NH4 प्लस OH माइनस, और अब एल्यूमिनियम सल्फेट Al प्लस 3 और SO4 माइनस माइनस ऐसे होगा। ठीक है, अगर वैलेंसीज देखें तो ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं, एल्यूमिनियम एक है और SO4। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो स्टैचोमेट्री बैलेंस करने के लिए 2 लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, तभी तो जाके फिर वो बैलेंस होगा, राइट। इस तरह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और अमोनियम सल्फेट बनेगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एक बेस रिएक्ट हो रहा है साल्ट के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Which one of the given is a commonly known as blue vitriol and used as a fungicide? Which is blue vitriol and used as फंजीसाइड, मतलब फंगस को मारने के लिए यूज होता है। तो ऐसा कौन सा वाला है? ऑप्शन नंबर 1, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। नाम पता नहीं है तो लिख लो, पोटेशियम नाइट्रेट। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूलेस देते हैं। सेकेंड, कॉपर सल्फेट CuSO4। थर्ड, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। एंड फोर्थ वन इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देखो कौन सा वाला ब्लू विट्रल होता है, इसके पहले भी बहुत बार आया है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं ब्लू विट्रॉइल सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म, फिर से रिएक्शन दिए यहाँ पे एक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन calcium hydroxide CaOH taken twice reacts with कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करना है, तो कौन सा वाला बनेगा? ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर 2, वाटर। ऑप्शन नंबर C, साल्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। देखो क्या बनेगा यहाँ पे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जनरली यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और दूसरा होगा साल्ट। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा एंड में H2O, और साथ में एक साल्ट बनेगा, so दैट विल बी अ वाटर एंड साल्ट। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर होगा H2O और एक साल्ट बनेगा, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट होगा तो इस तरह की रिएक्शन देगा। क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑकर्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ वाटर? तो कौन सा फिनोमेना होगा? देखो, व्हेन एसिड मिक्स्ड विथ वाटर, कोई भी एसिड लो और मिक्स करके देखो वाटर में, तो क्या क्या होगा आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है, अच्छा यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं कि क्या क्या होगा। एक ऑप्शन दिया है न्यूट्रलाइजेशन, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगा। सेकंड दिया है डाइल्यूशन होगा, और थर्ड ऑप्शन दिया है
आयोनाइजेशन होगा। सो ओनली बी इज करेक्ट। बी मतलब यहाँ पे आपको अभी सेकंड ऑप्शन लेना है। ओनली सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन में सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है ओनली थर्ड इज करेक्ट। देखो जब भी कोई एसिड मिक्स होता है वाटर के साथ, तो एक तो वहाँ पे क्या होगा बोलो, कोई भी एक एसिड ले लो, वो वाटर में डाइल्यूट हो जाएगा, दैट विल बी अ डाइल्यूशन रिएक्शन तो होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है, जब एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ। यहाँ पे तो वाटर दिया है तो न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं आएगा, और साथ में जब एसिड रिएक्ट होगा वाटर के साथ तो वहाँ पे उसके आयन्स भी बनते हैं। तो एक तो हो गया डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूट हो जाएगा वाटर के अंदर एसिड, और दूसरा होगा आयोनाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कुछ रिएक्शन आपको खुद को भी करके देखने चाहिए, ठीक है। जो चीज़ आप खुद से थोड़ा सा सर्च करके देखते हो तो थोड़ा सा वो ज़्यादा दिन तक याद रहती है। हर चीज़ आपको परोस के नहीं दी जाएगी। कुछ रिएक्शन आपके लिए मैं ब्लैंक भी रखता हूँ, जैसे इसके पहले की रिएक्शन रखी थी, तो वो थोड़ा सा आपको भी ट्राई करनी चाहिए घर पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ओके, कहाँ गया? विच वन अमंग द गिवन इज अ वीक बेस पूछ रहा है आपको। कौन सा वाला वीक बेस है? इसके पहले आपको स्ट्रॉन्ग बेस पूछा था, अभी वीक बेस पूछ रहा है। देखो चार ऑप्शन में से तीन स्ट्रांग होंगे, एक वीक होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड वन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अभी जस्ट आया था ना, तो ये वाला स्ट्रांग था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा वाला ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा वाला है ऑल ऑफ दिस। तो ये तो पक्का है कि ऑल ऑफ दिस तो आएगा ही नहीं, बिकॉज जस्ट एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे KOH क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस था। स्ट्रॉन्ग बेस, जैसा KOH है उसी तरह NaOH भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस ही है। बचा क्या, सिर्फ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। विच एसिड इज यूज्ड इन द कोला टू गिव इट अ बाइटिंग शार्प टेस्ट? कोला के अंदर कौन सा एसिड यूज होता है? कोला, उसमें विच एसिड इज यूज्ड? ऑप्शंस आर, नंबर वन सल्फ्यूरिक एसिड, भाई ये तो यूज ही नहीं करेंगे यार, सल्फ्यूरिक एसिड पिएगा तो कैसे थोड़ी ना बंदा रहेगा। सेकंड वन इज टार्टारिक एसिड, पहला तो ऑप्शन यही कट गया, एस्टेसोफर कहाँ से यूज करेंगे। थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी यूज नहीं कर सकते। और लास्ट में है सिट्रिक एसिड। देखो ये दो तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग वालों को तो पहले ही कट करो, ये तो अपन पी ही नहीं सकते ना। बचे क्या, टार्टारिक और सिट्रिक। तो कोला में जो है ना ज्यादातर तो टार्टारिक एसिड यूज होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड नहीं होगा, सिट्रिक एसिड जैसे लेमन जूस वगैरह होगा, वहाँ पे आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो आंसर विल बी टार्टारिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ अ पीएच स्केल। क्या, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पीएच स्केल की रेंज क्या होती है? कितनी बार तो अपन ने निकाली है, 0 to 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Due to excess passing of carbon dioxide through an aqueous solution of slacked lime, its milkiness fades because of, अच्छा आपको चार ऑप्शन दिए, देखो। ड्यू टू एक्सेस पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर पास हो रहा है एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ड लाइम, कल भी बताया था स्लैक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये रिएक्ट होगा, सेम कंपोजिशन है यहाँ पे, आपको मैंने अभी बोला था ये रिएक्शन आपको घर पे ट्राई करनी है। चलो फिर भी अभी ऑप्शन क्वेश्चन में यही आया है। पहला दिया है कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, सेकेंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, थर्ड कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, एंड फोर्थ वन ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मोर हीट होगी वहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, जब इस तरह का कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा स्लैक्ड लाइम के ऊपर से, तो वहाँ जो सॉल्यूशन है ना उसका अपीयरेंस मिल्की हो जाता है, मिल्की सॉल्यूशन हो जाता है वो मिल्की वाला। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दी कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे फॉर्म होता है, इसलिए उसका अपीयरेंस मिल्की हो जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना हो। ये एक साल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर भी बनता है वहाँ पे, ठीक है।
Next, question number 24. When acid dissolves in water, it releases. When acid dissolves in water, तो वो क्या रिलीज करता है? देखो, H प्लस आयन, H माइनस आयन, H प्लस, H माइनस, H3O प्लस और H3O2 प्लस। जनरली जो भी एसिड डिजोल्व होगा वो क्या देता है? H प्लस आयन, क्योंकि अपने को आयरनियस की कंसेप्ट याद है ना, H प्लस आयन देता है वो। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द अरेनियस एसिड? अब अरेनियस की अगर अपन थ्योरी देखेंगे तो अरेनियस के एसिड में कौन सा एलिमेंट होता है? ऑब्वियसली H प्लस होगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया है H प्लस का, ठीक है, हाइड्रोजन ही होगा वहां पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, मिथिल रेड कलर इन एसिडिक मीडियम इज? मिथाइल रेड, ये एक इंडिकेटर है। मिथाइल रेड अगर आप डालोगे एसिडिक मीडियम में तो आपको कौन सा कलर दिखेगा? एसिडिक मीडियम में इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर है। ऑप्शन दिए हैं येलो, सेकंड ऑप्शन दिया है पिंक, थर्ड ऑप्शन दिया है रेड एंड फोर्थ वन इज ऑरेंज। तो कौन सा वाला कलर शो करता है वो एसिडिक मीडियम में? दैट इज द रेड कलर इज शोन इन द एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन नंबर 27, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज? था इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम केमिकल फॉर्मूला कौन सा आता है? जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला आपको चार ऑप्शन दिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। फर्स्ट ऑप्शन इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये तो कल याद किया था, ये किसका फॉर्मूला है? POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहाँ तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। सेकेंड, CaSO4 डॉट 2H2O। थर्ड ऑप्शन इज CaSO4 dot H2O and last option is CaSO4 dot 3H2O। करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे CaSO4 dot 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दिस विल बी द करेक्ट रिएक्शन फॉर करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर द जिप्सम। और उसी के साथ अगर POP का फॉर्मूला पूछेगा तो CaSO4 dot हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट विल बी अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये हो गया अपने 27 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। Question number 28. During the preparation of HCl gas on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The purpose of the using calcium chloride is? देखो, जब HCl ह्यूमिड डे के अंदर जब HCl का प्रिपरेशन किया जाता है ना, तो उस वक्त वहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड की एक ट्यूब लगा देते हैं। इसका पर्पज ही ये है कि कैल्शियम क्लोराइड वहाँ पे क्या करे, मॉइस्चर जितना भी होगा HCl गैस के साथ उसको एब्जॉर्ब कर सके। दैट इज द यूज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड।